गुड इवनिंग ऑल अटेंडेंट्स एंड पैनलिस्ट टीम। आज हमारी 19वीं फ्री वेबिनार सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का टॉपिक है फिटनेस इन प्रेगनेंसी और हमारे रिसोर्स पर्सन जाने माने प्रोफेसर डॉक्टर पल्लवी पटेल जिसने एमपीटी रिहेबिलिटेशन में किया है, और आगे का सब्जेक्टिव विवरण और मैडम का परिचय देने के लिए मैं डॉक्टर मेहुल कॉन्ट्रैक्टर और डॉक्टर समीरा को आमंत्रित करता हूँ। Please, doctor, give your words to ma'am. Yes, thank you, sir. Thank you so much. A warm welcome, a warm good evening to all, one and all, live on Facebook as well as the participant live on Zoom with us. Thank you for being there with us since so many days. And yes, we are back with one more session with new topic, that is fitness in pregnancy, right? So, most of the students, specifically girls, that they might be, so much curious that what exactly that we need to do during this period of time, right? So that the curiosity, keep yourself, at the end of the session, you'll be getting at least a good amount of knowledge that what exactly the fitness means during this, pregnancy. So our speaker, Dr. Palay Patel, I would like to convey my thanks behalf of the VN Patel Medical Campus that she accepted my invitation after long time. And yes, there are a few things that I'll call her later, and then I'll let her know. So yes, thank you very much, ma'am, for accepting our invitation. And the way you is going to share the knowledge, I know it will be powerful session. So guys, I want to let you know one thing regarding Dr. Pallavi Patel. She is a very ambitious, I would say professional, very ambitious professional. Why that I'll tell you one thing. You know, there are certain set of minds in our brain that एक बार बीपीटी किया, अगर क्लिनिकल थेरेपिस्ट की जॉब चालू कर दी, तो अगर 1-2 साल हो गया, 3 साल हो गया, तो देन दैट लिंक फॉर एजुकेशन वी कैन नॉट कनेक्ट इट. And then एक बार अर्निंग करना चालू कर दे, the moment we start earning, then nobody would like to leave earning and then go back again for the education. A speaker on the screen, Dr. Pallavi Patel, completed BPT, and then after 6 to 7 years having a baby, okay, a small baby. You must have heard her voice during the in the beginning of the Facebook live, at the initial moment of the Facebook live, you must have heard a small voice of a baby. So with the having a small baby, after the 7 to 8 years of a gap in between BPT and between the BPT and MPT, she proved herself that yes, education does not have any mark. Okay, and the matter of fact is she was my batchmate, and she got to believe that I am the one of the best friend of her. And yes, so not wasting much of your time, she is a wonderful speaker. Guys, stay with us and get to know how the fitness need to maintain during the pregnancy time. So now over to you, Samira ma'am. Please introduce and welcome our speaker for the day, and we'll proceed further. Thank you. Good afternoon, everyone. Thank you for joining us. Myself, Dr. Samira Patel, Assistant Professor of Sri Odoram Physiotherapy College, VN Patel Medical Campus. Honored to welcome you on the webinar series of different topics. Today, we have a chief guest, Dr. Pallavi Patel, who completed her Masters in Rehabilitation from Sumandi Pijapit, Baroda in 2013. And she has completed her BPT from Ahmedabad Civil Medical College. She is a co-founder and owner of the Nila Physiotherapy Center in Surat. She is a childbirth educator and pre and postnatal fitness expert. She is also expert in invasive pelvic floor rehab specialist, and she has completed her certified course in craniosacral visceral manipulation. Once again, I welcome you, ma'am, on this virtual stage of the knowledge, and please acknowledge us, and I carry forward to you, ma'am. Over to you.
Thanks a lot. Thank you very much for warm welcome and beautiful introduction of myself. Thank you very much. Thank you, Dr. Mehul. Thank you, Dr. Samira. Thank you, Prakash sir. Without wasting much time, we are starting our webinar. The topic is fitness in pregnancy. Why it is so much important? We'll see step by step. Fitness, what is it? So, in gross words, we can say, according to Center for Disease Control and Prevention, there are so many definitions of fitness. But according to Center for Disease Control and Prevention, physical fitness is defined as the ability to carry out daily tasks with vigor and alertness, without undue fatigue, and with ample energy to enjoy leisure time, pursue, and respond to emergencies. Okay. Based on this definition, fitness involves everything from getting out of the bed to hiking. So this is a very gross definition of fitness. These are some synonyms of fitness. We can say fitness is health, healthiness, heartiness, soundness, wellness, wholeness, wholesomeness. These all are considered as fitness. And what is it not? Illness, sickness, unhealthiness, unsoundness. अगर ये सब है तो हम बोल सकते हैं कि हम फिट नहीं हैं. फिटनेस का ऐसे देखा जाए तो स्पोर्ट्स में फिटनेस अलग रहता है, डेली लाइफ में एडीएल में फिटनेस अलग रहता है. और जैसे हमने देखा कि स्पेशल कंडीशंस जैसे कि प्रेगनेंसी है तो उसमें फिटनेस की डेफिनेशन पूरी चेंज हो जाती है. तो फिटनेस हम प्रेगनेंसी में कैसे देखेंगे? प्रेगनेंसी में फिटनेस मतलब हम ऐसे चेक नहीं करते, આપણે એવી રીતે ચેક નથી કરતા કે કાર્ડિયોરેસ્પિરેટરી એફિશિયન્સી કેટલી છે, કે મસલ પાવર કેટલો છે, કે મસલ ફોર્સ કેટલો છે, કે મસલની એફિશિયન્સી. ધીસ આર નોટ ક્રાઇટેરિયા ટુ ચેક ફિટનેસ ઇન ધ પ્રેગ્નન્સી. પ્રેગ્નન્સીમાં ફિટનેસનો એમ છે કે તમારું જે લેવલ છે ફિટનેસનું પ્રી કન્સેપ્શન લેવલ એને મેન્ટેન રાખવું અથવા તો મોડરેટલી ઇમ્પ્રૂવ કરવું. That should be our aim during pregnancy for fitness. અને પોસ્ટનેટલ સ્ટેજમાં તમારું જે પ્રી કન્સેપ્શન લેવલ હતું ફિટનેસનું એને ફરી પાછું આપણે રિગેઇન કરવાનું છે, ઇમ્પ્રૂવ કરવાનું છે અને ફરી પાછું એને મેન્ટેન કરવા માટેનું જે કંઈ પણ એક્સરસાઇઝીસ પ્રોટોકોલ છે તેને ફોલો કરવાનું છે. તો બેઉ ફેઝમાં એમ will be different. During pregnancy, it should be maintained or moderately improved, and in postnatal stage, it is to be regained and improved. હવે આપણે જ્યારે ફિટનેસની વાત કરીએ તો મોટા ભાગે આપણને ફિઝિકલ ફિટનેસ પર વધારે ध्यान જાય કે જીમ છે કે કોઈ ક્લાસ છે કે એરોબિક ક્લાસીસ છે, ફિટનેસ ક્લાસીસ છે. બટ એક્ચ્યુઅલી વી શુડ Excuse me, ma'am. Yes. There is one request from Facebook Live viewers that if you can go in Hindi, because few are from the, many of them are from the outsides. So if you can go in Hindi language. So, thank you. Okay, definitely, sure. So it will be mixed Hindi English, okay? Okay. So we all have actually, in deeper sense, we all have three bodies. What are they? We all have physical body, mental body, and spiritual body. In pregnancy, we should take care of all the three because it is believed that our physical body and mental body is interconnected. जो हमारे साइकोसोमेटिक डिसीजेस आते हैं हमारे रूटीन फिजियोथेरेपी में तो हम उसको कनेक्ट कर सकते हैं कि हाँ जो साइकोसोमेटिक है उसको हम डीपर लेवल पे, मेंटल लेवल पे, साइकोलॉजिकल लेवल पे अगर उनको ट्रीट नहीं करते हैं तो फिजिकल पेन या फिजिकल कंडीशंस जो है वो कभी इम्प्रूव नहीं होती है. तो प्रेगनेंसी में तो ये बहुत ही इंटर रिलेटेड रहता है सभी तरह से. तो हमको ये तीनों लेवल पे काम करना होता है टू मेक एंड कीप द लेडी फिट. सो फिटनेस ऑफ ऑल थ्री बॉडीज इज मस्ट फॉर अ फुलफिल्ड एक्सपीरियंस. अगर प्रेगनेंसी अभी पहले का टाइम अलग था कि जब लोगों के घर में 7, 8, 9, 10, 11 बच्चे होते थे
अभी फैमिली बहुत शॉर्ट होती है, तो स्मॉल होती है, तो प्रेगनेंसी भी 1 या 2 ही रहती है। तो जो वो एक्सपीरियंस प्रेगनेंसी का है वो अगर फुलफिल्ड और बहुत हैप्पी हेल्दी रहेगा तो वो लाइफ टाइम के लिए एक गुड मेमोरी बन के रहे। जो एक्सपीरियंस है वो अच्छा नहीं रहेगा। तो इसके लिए हमको तीनों बॉडी पे काम करना है। फिजिकल बॉडी के लिए हमको जो प्रोटोकॉल वाइज गाइडेड एक्सरसाइजेस है उस पे ध्यान देना है। मेंटल हेल्थ के लिए हमको मेडिटेशन है, काउंसलिंग है, ये सब हम आगे देखेंगे कि क्या करेंगे उस सब के लिए। और स्पिरिचुअल हेल्थ, क्योंकि जो सुपर पावर है उसमें जो हम बिलीव रखते हैं, कोई भी जिस भी सुपर पावर को हम मानते हैं उस पे अगर हमारा विश्वास अटूट है तो चाहे कोई भी कंडीशन आए, प्रेगनेंसी इज अ वेरी डेलिकेट फेज ऑफ लाइफ, तो कोई भी सिचुएशन हमारे सामने आती है तो हम ऐसे स्ट्रांगली उसको फेस कर सकते हैं। सो बीइंग रेडी फॉर अ किड इज नॉट ओनली फिजिकली फिट, वी हैव टू प्रिपेयर ऑल आवर 3 बॉडीज, स्पिरिचुअली बाय प्रेयर, बाय कनेक्टिंग विद गॉड, मेंटली हमको जो भी हमारी मेंटल कंडीशन है, मेंटल इश्यूज है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, हमारी अभी जो डे टू डे लाइफ में हमारी लाइफस्टाइल ऐसी हो चुकी है कि हम पीस क्या है, हैप्पीनेस क्या है, वो काफी पीछे छूट जाता है कई बार। तो उसको हमें एफर्टली सामने लाना पड़ता है। तो पीस, हैप्पीनेस, कंसंट्रेशन, फुलफिलमेंट, वो जो सारा है वो मेडिटेशन या काफी चीजें हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। फिजिकली हमको देखना है हमारा फिटनेस लेवल कैसा है। कुछ भी अगर पेन है, किसी को बैक पेन है, किसी को नेक पेन है, कोई किसी भी टाइप का अगर डिस्कम्फर्ट है बॉडी में, तो वो कंसेप्शन से पहले ही उसको एड्रेस करना होता है। क्योंकि जैसे ही प्रेगनेंसी शुरू होगी फिजियोलॉजिकल चेंजेस आएंगे बॉडी में, तो जो पेन नहीं होता वो भी आता है कभी कभार, तो जो पेन होगा वो वर्सन हो सकता है। तो बेटर कि हम उसको पहले ही एड्रेस कर ले, उसका पहले ही ट्रीटमेंट वगैरह जो भी है वो उसको देख ले, तो हमारी प्रेगनेंसी थोड़ी सी स्मूथ जाएगी। बिफोर प्लानिंग अ प्रेगनेंसी वी शुड चेक फॉर अवर BMI। अगर हम अंडरवेट है तो भी वो हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर हम ओवरवेट है या ओबेस के क्राइटेरिया में आते हैं तो भी हमको थोड़ा सा वो ओबेसिटी पे काम करना है, वेट लॉस पे काम करना है, और हमारे BMI को हो सकता है तब तक उसको नॉर्मल रेंज में लेके आना है। दूसरा चीज है कि हमारा डाइट और न्यूट्रिशनल स्टेटस। तो अगर हम एनीमिक है या कोई भी डेफिशिएंसी है हमारे बॉडी में, तो वो प्रेगनेंसी को स्मूथ नहीं जाने देगा। तो बेटर कि बिफोर कंसेप्शन हम एक बार हमारा न्यूट्रिशनल स्टेटस भी चेक कर ले, हमारा जो भी रूटीन ब्लड चेकअप से लेके सब कुछ वो हम एक बार देख ले, और अगर वो अच्छे से जा रहा है तो और कोई दिक्कत नहीं, अदरवाइज उसको भी एड्रेस करके उसको ख्याल करना है। तो इन शॉर्ट फिटनेस इन प्रेगनेंसी हम ग्रॉसली बोल सकते हैं कि एक चीज ये है कि एब्सेंस ऑफ प्रॉब्लम्स, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो उसको हम बोल रहे हैं कि फिट है प्रेगनेंसी, कोई दिक्कत नहीं है। उसके आगे भी हम जाएंगे कि इसको इन एब्सेंस ऑफ प्रॉब्लम हाउ हम कैसे हम हमारा फिटनेस लेवल अप ला सकते हैं। तो ग्रॉस जो प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम्स होते हैं वो क्या होते हैं? मेजॉरिटी ऑफ टाइम इंडाइजेशन होता है, हार्ट बर्न होता है, किसी को हाई ब्लड प्रेशर की तकलीफ आ जाती है, मॉर्निंग सिकनेस इज अ बिग प्रॉब्लम इन मेजॉरिटी ऑफ द प्रेगनेंसी, लीकिंग निपल्स होता है, ब्लीडिंग होता है। तो ये सारी चीजें हैं जो हमको कंसर्न करवाती है कि भाई ये हमारी प्रेगनेंसी है जो अच्छे से जा रही है कि नहीं जा रही। तो आगे हम थोड़ी सी टाइम में डिस्कस करेंगे जो कॉमन प्रॉब्लम्स है प्रेगनेंसी में, जो बहुत कॉमन है। काफी प्रॉब्लम्स है जो किसी किसी को आती है, लेकिन जो कॉमन प्रॉब्लम्स है वो थोड़ी सी हम डिस्कस करेंगे, उसको डील कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब पहले जो 3 महीने होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, उसको हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कंसिडर करते हैं। उसमें बहुत बार होता है कि मॉर्निंग सिकनेस मेजॉरिटी ऑफ लेडी में आती ही है। 70 to 80% लेडी में मॉर्निंग सिकनेस इज वेरी कॉमन। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि उनको रिकमेंड करते हैं कि आप मार्केट फूड जो हो वो प्रीफर करें। उससे क्या होगा
कि हमारी जो न्यूट्रिशनल लेवल है वो भी अच्छा होगा, मॉर्निंग सिकनेस में भी हमको बहुत फायदा मिलेगा। दूसरा जो चीज कर सकते हैं कि स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स, एक साथ बहुत ज्यादा नहीं खाना है, थोड़ा थोड़ा बहुत बार खाना है, हर 2-3 बार 2-3 घंटे में कुछ ना कुछ खा लेना है। जो हमारा स्टमक है वो बहुत ज्यादा देर तक खाली नहीं रहना चाहिए। अगर वो बहुत ज्यादा देर तक खाली रहेगा तो वो जो डाइजेस्टिव जूसेस है और जो हमारे हार्मोन्स है वो सारे मिलके फिर हमको नोजिया वॉमिटिंग की फीलिंग देते हैं। तो हो सकता है तब तक किसी को मॉर्निंग सिकनेस मतलब सुबह में बहुत ज्यादा नोजिया वॉमिटिंग रहता है, तो हम उसको ये भी टिप दे सकते हैं कि अगर आप रात को अगर यूरिनेशन के लिए या फिर पानी पीने के लिए उठे तो एक आध बिस्किट या ऐसा कुछ पेट में डाल के ही वापस सोए, तो सुबह में जो मॉर्निंग सिकनेस की प्रॉब्लम होती है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। फ्राइड फूड है, स्पाइसी फूड्स है, ये सब हमको अवॉइड करना है। डिहाइड्रेशन को बिल्कुल ही नहीं आने देना है, कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ लिक्विड जाता ही रहना चाहिए बॉडी में, तो उसमें काफी फायदा मिलता है मॉर्निंग सिकनेस में। अगर सिर्फ नोजिया ही है, वॉमिटिंग इतना ज्यादा नहीं है, तो आप कुछ ना कुछ मुंह में रख के उसको मतलब ऐसे चबा सकते हैं। मिंट है या इलायची है या लौंग है, ऐसा कुछ ना कुछ मुंह में रखेंगे तो वो जो नोजिटिक फीलिंग है, जो वो सलाइवेशन ज्यादा हो रहा है, वो बहुत कंट्रोल में आ जाएगा। दूसरी जो चीज है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में फील करती है लेडी, वो है फटीग। कुछ भी मतलब उसको एडीएल में भी ज्यादा बहुत थकान लगती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ आ जाता है, ऐसे ही लगता है कि मतलब बॉडी में कुछ ताकत ही नहीं रहती। ये सारा मतलब उनके वर्ड्स होते हैं कि मुझे मतलब इतनी ताकत नहीं लग रही है बॉडी में, ठीक है। तो हो सकता है कि इस एनीमिया का साइन हो, इसलिए मैंने बोला कि जैसे कि हम कंसेप्शन से पहले थोड़े से टेस्ट करवाते हैं तो उसमें भी हम एचपी लेवल और ये सब चेक कर लेते हैं कि उनको पहले से एनीमिया ना हो, क्योंकि फिजियोलॉजिकल एनीमिया होने ही वाला है प्रेगनेंसी में। तो फटीग अगर इतना ज्यादा है तो हो सकता है कि उनको एनीमिया हो, तो उसके लिए हमको आयरन रिच फूड उनको रिकमेंड करना है। एक्सेस टी और कॉफी जो है वो उनको अवॉइड करने को बोलना है। प्रेगनेंसी में जैसे ही ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है तो हीमोग्लोबिन जो पहले 12-13 ग्राम पर 100 ml होता है वो अप्रोक्सीमेटली 11 ग्राम पर 100 ml हो जाता है, दैट इज नॉर्मल। बट अगर 11 ग्राम पर 100 ml से कम हो जाता है तो उसको हम एनीमिया बोल सकते हैं, और उसको हम फिजियोलॉजिकल एनीमिया बोलते हैं, इट इज नॉट पैथोलॉजिकल। ओके, तो प्रेगनेंसी में ये बहुत ही कॉमन है। तो अगर जो 11 से कम हो जाता है हमारा एचबी लेवल, तो डॉक्टर को कंसल्ट करना है। वो जो सप्लीमेंट देते हैं उनके साथ हमको आयरन और विटामिन सी रिच फूड उनको प्रिस्क्राइब करना है। विटामिन सी आयरन को रीअब्सॉर्ब करने में बहुत हेल्पफुल रहता है, तो सिर्फ हम आयरन रिच फूड देंगे तो इतना ज्यादा उसका एब्सॉर्प्शन बेनिफिट नहीं मिलेगा जितना हम उसको विटामिन सी के साथ देंगे। एक और प्रॉब्लम है हार्टबर्न, मतलब एसिडिटी। बोलते हैं कि मुझे जलन होती है, कुछ भी खाती हूँ तो फिर पेट में जलन होती है या छाती में जलन होती है, तो उसके लिए भी यही हमको करना है कि स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स देना है और बहुत धीरे से और चबा के खाना है, क्योंकि हमारी इसी भागदौड़ वाली जिंदगी में हम ऐसा बैठ के आराम से खाना भूल जाते हैं, जो हमको उनको याद दिलाना है। बिटवीन मील्स थोड़ा थोड़ा ड्रिंक लेना है। मिल्क और मिल्क बेस्ड रेसिपीज बहुत हेल्पफुल रहती है हार्टबर्न में। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, हाईली सीजनड और स्पाइसी फूड्स, स्पाइसी एंड फ्राइड फूड्स, मतलब चिप्स है या फ्रेंच फ्राइज है या जंक फूड्स है, ये सब कुछ अवॉइड करना है। वैसे भी प्रेगनेंसी में ओवरऑल हेल्थ के लिए भी ये सारी चीजें बहुत अच्छी नहीं है, तो हार्टबर्न के सिवा भी हम उसको अवॉइड करें तो ही अच्छा रहता है। खाना खाने के तुरंत बाद लेट नहीं जाना है, थोड़ा 10 मिनट के लिए थोड़ा हल्का वॉक ले लेना है, तो जो ये हार्टबर्न की प्रॉब्लम है काफी हद तक ठीक हो जाती है। सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में मोस्टली जो प्रॉब्लम्स आती है लेडी में वो काफी हद तक कॉमन रहती है। एक ये है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन बहुत ही कॉमन है बिकॉज ऑफ सम हॉर्मोन्स रिलीज्ड इन आवर बॉडी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट होती है हमारे इंटेस्टाइन की, वो कम हो जाती है, तो उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहती है। तो फाइबर रिच फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और फूड लेना है हमको, होल ग्रेन्स हो सके तब तक ज्यादा लेना है। ड्राइड फ्रूट्स ले सकते हैं बहुत सारे,
पानी बहुत ज्यादा पीना है अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो। काफी केसेस में मैंने देखा है कि सिर्फ यही एक ऐड कर देते हैं। अगर हम उनको बोलते हैं कि आप अगर 4 से 5 ग्लास पानी पीते हैं, उसको अगर आप 3 गुना कर दो, आप 12 से 14 ग्लास पानी पियो दिन में, तो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम वैसे ही कुछ किए बिना ही वो हो जाती है, अच्छी हो जाती है। गर्म पानी में नींबू डाल के पी सकते हैं, हर्बल टी पी सकते हैं। और उसके साथ यहाँ पे हमारा बहुत अच्छा रोल आता है फिजिकल एक्टिविटी, गाइडेड फिजिकल एक्टिविटी जो हम उनको रिकमेंड करते हैं, वो कॉन्स्टिपेशन में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। क्रैम्स आते हैं, बहुत ही कॉमन है। इसमें अगर हम कैल्शियम रिच फूड उनको प्रिस्क्राइब करें, उसके साथ मैग्नीशियम रिच फूड लाइक नट्स है, ग्रीन वेज है, बीन्स, होल व्हीट, ये सब बहुत फायदेमंद रहता है क्रैम्स में। इसके साथ अगर हम सनलाइट एक्सपोजर उनको रिकमेंड करें, सुबह का जल्दी सुबह 7 या 8 बजे से पहले का जो सनलाइट होता है उनमें हम एक्सपोजर दें, तो विटामिन डी की रिक्वायरमेंट भी काफी हद तक पूरी हो जाती है। तो विटामिन डी और कैल्शियम दोनों एक साथ अगर बॉडी में वर्क करेंगे तो क्रैम्प्स की प्रॉब्लम बहुत कम हो जाती है। स्वेलिंग्स होता है लेग्स और फीट में, वो भी हार्मोनल होता है, मतलब जो हमारी वेसल्स है उनका जो टोन होता है उनकी वॉल्स का, वो कम हो जाता है बिकॉज ऑफ हार्मोन्स रिलीज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो उसके लिए हम कर सकते हैं कि डायोरेटिक प्रॉपर्टीज वाले फूड जो है वो हम ज्यादा प्रिस्क्राइब करें उनको, जैसे कि ककुम्बर है, मेथी है, पनीर सीड्स है, गार्लिक है, ग्रीन टी है, ये सारे बहुत अच्छे हैं। प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स लेना है, बहुत ज्यादा पानी पीना है, बहुत ज्यादा एक जगह पे लंबे टाइम तक खड़े नहीं रहना है, या पैर ऐसे लटका के अगर बैठना है, बैठना पड़ सकता है तो आपको हर 20 या 25 मिनट में एक बार उठ के खड़े होके एक चक्कर लगा के आना है, वापस बैठना है, मतलब एक ही पोजीशन में बहुत ज्यादा टाइम तक नहीं रहना है अगर आपको पैर में स्वेलिंग है तो, ठीक है। और लूज कंफर्टेबल क्लोथिंग बहुत रिकमेंडेड है, क्योंकि अगर टाइट क्लोथ्स आप पहनते हो तो सर्कुलेशन में उसकी वजह से भी इंटरफेरेंस आ सकता है। फिजिकल फिटनेस को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। हम लोग देखेंगे फिजिकल फिटनेस और मेंटल फिटनेस। तो पहले हम फिजिकल फिटनेस पे जाते हैं। इसके 2 पार्ट है, एक हम देखेंगे एक्सरसाइज का पार्ट और दूसरा है डाइट और न्यूट्रिशन का पार्ट, ठीक है। फिजिकल फिटनेस में हम रिकमेंड करते हैं एक्सरसाइजेस एज अ फिजियो। definitely we are going to concentrate mainly on exercise. Why? लेकिन why exercise in pregnancy, क्यों वो इतना जरूरी क्यों है, उसका क्या फायदा होता है। अगर आप किसी लेडी को बोलोगे कि आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए प्रेगनेंसी में, लेकिन वो पूछेगी कि उससे क्या फायदा होता है। अगर मुझे मिसकैरेज हो गया, प्रेगनेंसी में कभी एक्सरसाइज करते हैं? प्रेगनेंसी में तो आराम करते हैं, राइट। ये बहुत ज्यादा Stay tuned, guys. She'll be back soon. Yes, Dr. Pallavi. okay. All okay? What happened? Yes, just a minute. Just a network issue, nothing else. Okay. Dr. Pallavi, you can do one thing. Yes. You can close your window, because the sound is coming all the way from your window. That wind is coming and it creates a lot of sound in between. Is it okay now? Yeah, it's quite okay. Yes, so now sound Sorry is for okay. yes, okay.
So sound is okay, audio is okay, video is okay, your PPT is visible. Now it is good to go. You can go. Okay. Yeah. Okay. ओके सो अगर हम पूरा प्रेगनेंसी हमारी एक्टिविटी लेवल जो है वो एडीएलसी भी कम कर देते हैं, हमारा फिटनेस लेवल बहुत ज्यादा लो हो जाता है, तो जब हम लेबर पे जाते हैं तो लेबर इज अ बिग इवेंट, तो उसमें हमको बहुत ज्यादा एनर्जी, बहुत ज्यादा ताकत और बहुत ज्यादा स्टेमिना की जरूरत रहती है। वो हमको ऐसे ऑल ऑफ सडन नहीं मिल जाएगा, तो हमको हमारे फिजिक और मन को, हमारे शरीर और मन को वो लेबर के लिए प्रिपेयर रखना होता है। तो हमको जो हमारा एनर्जी लेवल है, हमारा फिटनेस लेवल है, वो एक लेवल तक बनाए रखना होता है, और उसके लिए हमको एक्सरसाइजेस की जरूरत होती है। लोगों को काफी कंसर्न होता है कि अगर एक्सरसाइज किया और हमारा मिसकैरेज हो गया या हमको प्रेगनेंसी में और कोई दिक्कत आ गई या ऐसा कुछ हुआ तो क्या करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये जो एक्सरसाइजेस होती है वो गाइडेड एक्टिविटी रहती है, आप एक्सपर्ट के साथ रहते हो, उनको सारी चीजें पता होती है, आपको कितना एक्सर्शन देना है, कितना नहीं देना है, कौन सी एक्टिविटी देनी है, कौन सी नहीं देनी है, तो ये बहुत ही सेफ होता है। तो ऐसा कोई अगर क्लाइंट आके हमको ऐसा पूछता है कि ऐसा है, तो हम उनको ऐसा एश्योरेंस दे सकते हैं कि नहीं, ये आपके लिए ही बनी हुई सारी प्रोटोकॉल गाइडलाइंस है और आप उसको हैप्पीली फॉलो कर सकते हैं विदाउट एनी स्ट्रेस। सो रेगुलर एक्सरसाइज हेल्प mother remain healthy and comfortable with growing body and weight gain। तो अगर एक्सरसाइज करते हैं रेगुलर तो वेट गेन भी चेक में रहता है। वेट गेन अगर हम अंडर वेट है बिफोर कंसेप्शन तो 16 से 18 केजी भी हो सकता है, और इट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। अगर हमारा बीएमआई प्री कंसेप्शन बिल्कुल ही रेगुलर एवरेज है तो 8 से 12 केजी इट्स नॉर्मल। और अगर हम ओवर वेट है बिफोर कंसेप्शन तो 6 से 7 किलो अगर हमारा वेट गेन होता है तो भी बच्चा एकदम हेल्दी और अच्छा ही रहता है। तो वेट गेन इज वेरिएबल, और एक्सरसाइज के साथ और प्रॉपर डाइटिंग के साथ हम ये भी चेक में रख सकते हैं वेट गेन, और हमारे बेबी का ग्रोथ कोई भी इंटरफेरेंस के बिना बहुत ही अच्छा होगा। एक्सरसाइज और क्या करता है, तो हमारे जो मसल्स है उनको टोन और स्ट्रेंथन करता है, जो कि प्रेगनेंसी में बहुत ही अफेक्टेड रहता है बिकॉज ऑफ हार्मोन जो हम बोलते हैं रिलैक्सिन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन सारे रिलीज होते हैं उनकी वजह से। और पेल्विक फ्लोर, एब्डोमिनल्स और लोअर बैक मसल जो कि बहुत ही कॉम्प्रोमाइज होते हैं प्रेगनेंसी में, उन सबको टोन और स्ट्रेंथन करने में हेल्पफुल रहता है। ऑल्सो इट हेल्प्स इन मेंटेन गुड रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन एंड पोस्चर। Although prenatal exercise and physical fitness do not guarantee an easy labor, ऐसा नहीं है कि अगर हम एक्सरसाइज करेंगे तो हमारा लेबर है, अगर हम बहुत ही फिजिकली फिट है तो हमारा लेबर है वो इजी हो जाएगा। लेबर पेन जो है वो लेबर पेन ही रहेगा, लेकिन they may give the mother more stamina to cope with a long hard labor and more awareness to help work with the body during labor। तो जो हमारा स्टेमिना, जैसे ही मैंने बोला कि हमारा स्टेमिना है, जो पावर है, वो जो स्ट्रेंथ है, वो जो लेबर चाहे कितना भी हार्ड हो, हम अगर मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर है उसके लिए तो हम उसके साथ अच्छे से काम कर सकते हैं। The exercising women have a higher level of endorphin, the body's natural pain relieving substance. One of the major benefits of the prenatal exercise comes after the childbirth। सो एंडोर्फिन का लेवल बहुत अच्छा रहता है, जो फिजिकली एक्टिव रहती है जो लेडी प्रेगनेंसी के दौरान, तो उनको ड्यूरिंग लेबर और आफ्टर चाइल्ड बर्थ बहुत ही उससे फायदा मिलता है। रिकवरिंग एनर्जी लेवल, strength and pre-pregnant size is unquestionably easier when one has maintained good physical condition during pregnancy। रेगुलर मॉडरेट एक्सरसाइज, हम सीवियर एक्सरसाइज में कभी नहीं जाएंगे प्रेगनेंसी में, मॉडरेट एक्सरसाइज तक ही रुकेंगे। तो क्या करते हैं वो, मसल टोन और स्ट्रेंथ मेंटेन करता है, एंड्योरेंस मेंटेन करता है, वो प्रोटेक्ट करता है बैक पेन के अगेंस्ट, एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ बॉडी फैट नहीं होने देता है, तो हमारा वेट गेन चेक में रहता है। और अगर बॉडी फैट ज्यादा एक्यूमुलेट नहीं होता है तो लेबर भी, नॉर्मल लेबर की चांसेस भी बहुत अच्छे रहते हैं, सीएस में जाने की पॉसिबिलिटीज बहुत कम हो जाती है। हैज पॉजिटिव इफेक्ट ऑन एनर्जी लेवल, मूड। अभी जनरल गाइडलाइंस देखेंगे
कि अगर हम देखते हैं फिटनेस के फील्ड में है, अगर प्रेगनेंसी में हमको फिटनेस देखनी है किसी लेडी की, तो जनरल गाइडलाइंस क्या है, उसमें हम हार्ट रेट के ऊपर नहीं जाएंगे, वो आगे हम देखेंगे। टू अवॉइड इंजरी एंड प्रोवाइड मोस्ट बेनिफिट एक्सरसाइज, क्या क्या चीजें हमको ध्यान में रखनी है। तो एक ये है कि हमको वीक में 5 या 6 दिन रेगुलर एक्सरसाइज करना है। ऐसा नहीं है कि 2-3 दिन बहुत ज्यादा 2-3 घंटा काम कर लिया और फिर बाकी के 5 दिन ऐसे ही कुछ भी नहीं किया, ऐसा नहीं है। रेगुलर हमको 5-6 टाइम वीक एक्सरसाइज करना है। ऑलवेज इंक्लूड अ वार्म अप एंड कूल डाउन पीरियड एज यूजुअल। वेयर सपोर्टिव फुटवेयर, वो बहुत जरूरी है क्योंकि वैसे ही सारे लिगामेंट्स वगैरह रिलैक्स्ड होते हैं, जॉइंट्स फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा रहती है, तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। एक्सरसाइज ऑलवेज विथ स्मूथ मूवमेंट्स, अवॉइड बाउंसिंग, जर्की एंड हाई इम्पैक्ट एक्सरसाइजेस। व्हाइल एक्सरसाइजिंग डू नॉट होल्ड ब्रेक, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आपने वल्सला मैनर एक्टिवेट कर दिया तो आपका इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और इसकी वजह से आपका पेल्विक फ्लोर है उसको, उस पर बहुत ज्यादा प्रेशर है। तो ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है, चाहे कोई भी एक्टिविटी हो, आपको ब्रीथ होल्ड नहीं करना है, आपको कंटिन्यूअली ब्रीथिंग शुरू ही रखना है। अगर कोई भी टाइप का पेन अगर मॉम फील करती है कि मुझे ये एक्सरसाइज करते करते पेन हुआ है, तो आपको इमिडिएटली स्टॉप कर देना है। पल्स रेट को हम ट्रैक में रख सकते हैं, 120 पर मिनट से ज्यादा कभी नहीं जाना है, लेकिन ये एक क्राइटेरिया नहीं है हमारी एक्सरसाइज का, क्योंकि रेस्टिंग हार्ट रेट वैसे भी बढ़ा हुआ होता है प्रेगनेंसी में। तो हार्ट रेट इज नॉट गुड इंडिकेटर टू स्टॉप और टू प्लान योर प्रोटोकॉल ऑफ एक्सरसाइज। इसके लिए हमको बॉक्स स्केल या तो फिर टॉक टेस्ट ही रखना है हमारे तो उसमें ध्यान में। पानी पीना है बिफोर प्रेगनेंसी, बिफोर एक्सरसाइज, ड्यूरिंग एक्सरसाइज और आफ्टर एक्सरसाइज। पानी की बोतल हमेशा साथ में ही रखनी है। कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या क्या है, एक्सरसाइज कौन कौन नहीं कर सकता है, ये बिल्कुल एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन है। अगर इतनी कंडीशंस है तो एक्सरसाइज नहीं ही करना, मतलब फिजिकल एक्सरसाइजेस नहीं करना है। आप बेड में या बैठे बैठे कुछ एक्सरसाइजेस जो स्पेशली उनके लिए कस्टम मेड होती है वो कर सकते हैं। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, लेकिन जो हमारी ज्यादा स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस है या एरोबिक एक्सरसाइजेस है, वो सारी चीजें इन लोगों के लिए नहीं है। किन लोगों के लिए, हार्ट डिसीज होता है, लंग डिसीज होता है, सर्वाइकल इनसफिशिएंसीज होती है, जिनको स्टिचेस लेने पड़ते हैं सर्विक्स के अराउंड और जिनको कंप्लीट बेड रेस्ट बोलते हैं डॉक्टर, तो उनको एक्सरसाइजेस नहीं करनी है। मल्टीपल जेस्टेशन होता है और अगर वो हाई रिस्क में जाता है, मेजोरिटी ऑफ द टाइम मैंने देखा है कि अगर आईवीएफ बेबी है तो मल्टीपल जेस्टेशन के चांसेस बहुत ही हाई है, वो ट्रिपलेट भी हो सकते हैं। तो ट्विंस या ट्रिपलेट्स में हमको नहीं देना है कोई भी टाइप का एक्सरसाइजेस। अगर परसिस्टेंट ब्लीडिंग है, हर महीने काफी प्रेगनेंसी में देखने को मिलता है कि हर महीने ब्लीडिंग थोड़ा थोड़ा आता ही है, तो अगर ऐसा परसिस्टेंट ब्लीडिंग है तो हमको एक्सरसाइज उनको नहीं देना है। प्लेसेंटा प्रीविया की कंडीशन में नहीं देना है एक्सरसाइज। प्रीटर्म लेबर की चांसेस हो, ऐसा लगता है, अगर किसी को ऐसा हिस्ट्री है या किसी को अबॉर्शन की हिस्ट्री है तो उनको हम ज्यादा एक्सर्शन वाली एक्सरसाइजेस नहीं दे सकते हैं। किसी को प्रीक्लेम्जिया है, हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम रहती है, सस्टेन हाई ब्लड प्रेशर, तो उनको हम एक्सरसाइज नहीं दे सकते हैं। सीवियर एनीमिया है तो उनको ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम रहेगी बॉडी में, तो उनको भी हम लोग नहीं दे सकते हैं एक्सरसाइज। अगर आप क्लास ले रहे हो और एक्सरसाइजेस करवा रहे हो तो कब आपको स्टॉप करना है। अगर किसी को अचानक ही वेजाइनल ब्लीडिंग शुरू हो गई, कोई अगर डिजीनेस फील कर रहा है, फेंटिंग, उनको अगर लग रहा है कि मैं बेहोश हो जाऊं, तो उनको ऐसे डायरेक्टली ही बिठा देना है। ऐसे मतलब चेयर या वॉल या कुछ भी खंभा या कुछ भी ऐसा हो, वो हमेशा उनके आजू बाजू में ही रहना चाहिए कि ऐसे वो धड़ाम से गिर ना जाए। उनको ऐसे एक सपोर्ट तो रहना ही चाहिए बाय स्टैंड, कि वो उनको लेके मतलब अपने आप को संभाल सके। अगर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ आ रही है, उनको बात करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो उनको बोलना, ये एक्सरसाइजेस नॉर्मल फिजियोथेरेपी से अलग इसी वजह से है। हम नॉर्मल फिजियोथेरेपी में क्या बोलते हैं कि
अगर पेशेंट 7 रिपीटेशन के बाद बोलता है कि नहीं अब मेरे से नहीं होगा, हम बोलते हैं नहीं 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 आपको करना ही है, आपको 10 रिपीटेशन तक तो जाना ही है, आप कर सकते हो, आपको करना ही है, ठीक है, तो हम उनको फोर्स कर सकते हैं। प्रेगनेंसी में ऐसा नहीं है, प्रेगनेंसी में हमको उनकी सुननी है, उनकी बॉडी की सुननी है, उनकी सुननी है। तो अगर वो बोल रहे हैं कि अभी मेरे से नहीं होगा, मुझे बहुत सांस फूल रही है, तो हम बोलते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप आराम कर सकते हैं। हेडेक हो रही है, चेस्ट पेन हो रही है, मसल वीकनेस लग रही है, काफ पेन या स्वेलिंग हो रही है, तो अगर ब्लड क्लॉट भी हो सकता है, अगर ऐसा कुछ है तो हमको इमीडिएटली स्टॉप करवा देनी है एक्सरसाइज। कॉन्ट्रेक्शन जैसा लग रहा है, प्रीटर्म लेबर जैसा कि फॉल्स कॉन्ट्रेक्शन भी आ सकते हैं, लेकिन ऐसी कंडीशन में भी हम चांस नहीं ले सकते, उनको डायरेक्टली उनको हम टेस्ट पे ले जा सकते हैं। फीटल मूवमेंट डिक्रीज हो ऐसा लगता है, वो एक अलग चीज है जो फीटल मूवमेंट कैसे डिटेक्ट करते हैं। फ्लूइड लीकिंग हो, मतलब ऐसे ही लास्ट ट्राइमेस्टर या लास्ट मंथ में ऐसा होता है कि अगर ड्यूरिंग एक्सरसाइज सेशन अगर उनका बैग रप्चर हो गया और उनका एमनियोटिक फ्लूइड है जो लीक हो रहा है, तो डायरेक्टली ही उनको एक्सरसाइज स्टॉप करवा के उनको डायरेक्ट हॉस्पिटल ही भेजना है। हार्ट रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया है, पैल्पिटेशन आ रहा है इवन एट रेस्ट, तो उनको हम एक्सरसाइज नहीं दे सकते। इंटेंसिटी कैसे डिसाइड करेंगे हम प्रेगनेंसी में, तो ये दो चीजें हैं, एक तो बॉक्स स्केल है और एक टॉक टेस्ट गाइड है। तो हम यूजुअली 2 से 5, 2 से 4 इसी एरिया में काम करेंगे बॉक्स स्केल में। इजी टू समवॉट हार्ड में हम तभी जाएंगे जब वो लेडी जो है वो एथलीट है, रेगुलर रन कर रही है या जिम जा रही है या रेगुलर हमारे फिटनेस क्लास में आ रही है, तो हम समवॉट हार्ड में जाएंगे, अदरवाइज हम मॉडरेट पे ही रुकेंगे। तो ये गाइडलाइंस जो है हम ये फॉलो करेंगे। टॉक टेस्ट में सबसे अच्छा ये है कि टॉक टेस्ट कोई भी वर्कआउट करते टाइम वो कंटिन्यूअसली आपके साथ कन्वर्सेशन कर सकनी चाहिए। अगर उसकी सांस फूल रही है कंटिन्यूअसली, उसको स्टॉप होना पड़ रहा है, तो हम उस लेवल पे नहीं जाएंगे। तो जैसे ही हम क्लास शुरू करते हैं तो उससे पहले ही लेडी को सब समझा देते हैं कि हम बोल रहे हैं इसका मतलब ये नहीं आपको करना ही है, आपको अपने बॉडी की सुननी है। आपको कंटिन्यूअसली ऐसा लगना चाहिए कि आप पूरा सेंटेंस एक ही सांस में बोल सकती है, ऐसा नहीं कि आपको ऐसे रुक रुक के बोलना पड़ रहा है फिर भी आप वर्कआउट करते ही जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके वजह से फायदा होने की बजाय कभी कभी नुकसान भी हो सकता है। तो ये सारा काउंसलिंग हमको क्लास से पहले ही उनको दे देना है। कौन कौन के टाइप्स के एक्सरसाइज हम ऐड कर सकते हैं हमारे वर्कआउट में। एरोबिक एक्सरसाइज बहुत ही फेमस और कॉमन है और बहुत ही इफेक्टिव है, जो हमारे वर्कआउट में हम शामिल कर सकते हैं। वीकली 5 या 4 से 5 दिन एरोबिक एक्सरसाइज 20 या 30 मिनट या मैक्सिमम 40 मिनट्स तक हम उसके क्लास ले सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा है स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, स्पेसिफिक मसल्स जो हमको पता है कि वो कॉम्प्रोमाइज होने ही वाला है प्रेगनेंसी में, जैसे कि एब्डोमिनल मसल्स, पेल्विक फ्लोर मसल, लंबर मसल्स। तो ये सारे जो मसल्स हैं हमको पता है ही कि वो वीक होने ही वाले हैं, उनपे ज्यादा स्ट्रेस आने वाला है, तो उनकी स्पेसिफिक स्ट्रेंथनिंग और कंडीशनिंग के लिए हम काम करेंगे। उसके साथ अपर लिम्ब की स्ट्रेंथनिंग भी बहुत जरूरी है, क्योंकि पोस्ट प्रेगनेंसी उनको बेबी भी कैरी करना होता है, उनका वर्कलोड बढ़ सकता है, तो अपर लिम्ब स्ट्रेंथनिंग भी बहुत ज्यादा जरूरी है। लोअर लिम्ब की स्ट्रेंथनिंग क्योंकि वेट गेन के साथ उसको भी वो करना है, कोप अप करना है, तो ये सारी चीजें हम स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज में ऐड करते हैं। कंडीशनिंग एक्सरसाइज मतलब स्पेसिफिक मोबिलाइजेशन मैनिपुलेशन, जैसे कि पेल्विक फ्लोर की एक्सरसाइजेस हो गई या हिप ओपनिंग एक्सरसाइजेस हो गई या पेल्विक टिल्टिंग है या कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस है, हैमस्ट्रिंग स्ट्रेचिंग है या क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेचिंग है या ग्लूटिया स्ट्रेचिंग है। तो ये सारी जो कंडीशनिंग एक्सरसाइज है वो भी हम अपने प्रोटोकॉल में शामिल करते हैं। तो मेजोरिटी ऑफ द टाइम ये 3 टाइप की एक्सरसाइजेस है जो हमको एक बैलेंस तरीके से अपना एक प्रोटोकॉल बनाना है और उसको डिलीवर करना है। कौन कौन से टाइप की लेडी के साथ हम हमको काम करना होता है, कैटेगरीज ऑफ एक्सरसाइजर जिनको हम एक्सरसाइज दे रहे हैं। एक तो होते हैं कंप्लीट नो एक्सरसाइजर, कभी जिंदगी में कभी एक्सरसाइज नहीं किया है, कभी फिटनेस क्या है वो उनको पता ही नहीं है, और ऐसे में अगर उनको प्रेगनेंसी हो गई तो वो बिल्कुल ही सेडेंटरी हो जाएंगे,
बहुत ही पैम्पर्ड हो जाएंगे, मुझे कुछ भी नहीं करना, पानी का ग्लास भी एक्सपेक्ट करेंगे कि कोई लाके उनको दे। तो ऐसे ग्रुप में वो अगर हम उनको बोलेंगे कि आपको एक्सरसाइज करना है, तो पहले तो उनका ऐसे मतलब वाइड आइज के साथ ऐसा रिएक्शन होगा, हाँ एक्सरसाइज अभी प्रेगनेंसी में, कभी नहीं। लेकिन उनको थोड़ा सा मतलब आप उनको बहुत ज्यादा फोर्सफुली करोगे तो वो कभी आपको बिलीव नहीं करेंगे। लेकिन आपको हल्के से उनको फायदे समझाना है, जेंटल इंकरेजमेंट देना है उनको, तो वो बेसिक एक्सरसाइजेस में एटलीस्ट पार्टिसिपेट होने को रेडी हो जाएंगे। लेकिन वो कुछ भी नहीं करे, उनसे अच्छा है कि वो थोड़ा बहुत करे। दूसरा जो है नॉन रेगुलर एक्सरसाइजर, जो थोड़ा बहुत करते हैं लेकिन इतना रेगुलरली नहीं करते हैं, तो उनको कैसे बोल सकते हैं कि अभी आपको ये बहुत अच्छा टाइम है कि आप रेगुलर एक्सरसाइज करें। वो जैसे वो पार्टिसिपेट करते भी है, और मेजोरिटी ऑफ द टाइम हम 13 to 14 वीक्स के बाद हम उनको एक्सरसाइज शुरू, कोई भी मतलब मेजोरिटी ऑफ द प्रेगनेंसी में हम सेकेंड ट्राइमेस्टर से ही शुरू करवाते हैं एक्सरसाइज। और बहुत वेट बेरिंग एक्सरसाइज के साथ हम उनको शुरू नहीं करवाएंगे, हम बहुत उनको लाइट एक्सरसाइजेस के साथ शुरू करवाएंगे और धीरे धीरे उनको एक्स्ट्रा लेवल पे लेके जाएंगे। तीसरा जो है वो रेगुलर एक्सरसाइजर है, जो रेगुलर बिफोर कंसेप्शन भी रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं। तो उनको एटलीस्ट 3 times per week for 30 minutes or more to improve their aerobic capacity, क्योंकि उनका एरोबिक कैपेसिटी एक लेवल पे तो है ही, लेकिन उनको हमको इम्प्रूव करनी है। तो हफ्ते में 3 बार आधे घंटे के लिए हम उनको वर्कआउट करवा सकते हैं। Self regulate both the level of intensity and duration of exercise as pregnancy progresses। अभी उनको लगता है कि जैसे प्रेगनेंसी प्रोग्रेस हो रही है और हमारा वर्कआउट भी उनके साथ वर्क कर रहा है, तो जैसे जैसे प्रेगनेंसी प्रोग्रेस हो रही है वैसे वैसे हमारा इंटेंसिटी और ड्यूरेशन भी धीरे धीरे बढ़ेगा। ऑलवेज एम फॉर लो इम्पैक्ट, कभी भी कोई भी अगर एथलीट भी हो तो हमको हाई इम्पैक्ट एक्टिविटीज और एक्सरसाइज पे नहीं जाना है, हमको ऑलवेज लो इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट एक्टिविटी पे ही काम करना है। Prevent dehydration by maintaining an adequate fluid intake and should avoid exercising during hot and humid weather or with pyrexia। अगर उनको बुखार है या बहुत ज्यादा गर्मी एटमोसफियर है तो उसमें हमको उनको काम नहीं करना है। हमारा जो क्लास रहता है वो हो सकता है तब तक उसका टेम्परेचर 23 to 27 के बीच में ही रहना चाहिए, तो उनको ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा और उनका जो डिहाइड्रेशन है वो होने का चांसेस नहीं रहेगा। उनमें भी सेम ही है, वार्म अप एंड कूल डाउन बहुत अच्छे से करवाना ही है। एक चीज ये ध्यान में रखनी है कि कोई भी मसल को ओवर स्ट्रेच नहीं करना है, कोई भी पोजीशन ऐसी नहीं देनी है उनको कि कोई भी बॉडी पार्ट ज्यादा स्ट्रेच हो जाए, बिकॉज ऑफ अगेन दैट इफेक्ट ऑफ हार्मोन, कि हमारे जो जॉइंट्स और लिगामेंट्स रहते हैं वो लक्स पोजीशन में रहते हैं, तो हमको ज्यादा ओवर स्ट्रेच नहीं करना है उनको। सर्टन मूवमेंट्स तो हमको अवॉइड करनी है, और बैलिस्टिक एक्सरसाइजेस ऐसे जर्की मूवमेंट्स है या जो बहुत फोर्सफुल मूवमेंट है उनको हमको अवॉइड करना है। सडन चेंज ऑफ डायरेक्शन नहीं लाना है हमारे वर्कआउट में, कभी भी बैलेंस जाने का डर हो सकता है। ज्यादा सुपाइन पोजीशन को बिल्कुल ही अवॉइड करना है। अगर आपको सुपाइन पोजीशन में एक्सरसाइज देना ही पड़े तो आप एक चीज ये कर सकते हो कि कम से कम टाइम ड्यूरेशन में वो आप एक्सरसाइज एक कंप्लीट कर दो। आपको अगर सुपाइन में उनको 5 एक्सरसाइज देना है तो एक एक्सरसाइज सुपाइन में करवा लो, वापिस उनको बिठा दो, उसमें कोई एक्सरसाइज करवा लो, वापिस सुपाइन में ला दो, वापिस, मतलब प्रोलॉन्ग टाइम तक सुपाइन उनको नहीं करना है। उनको ये भी एडवाइस देना है कि रात को भी आप सुपाइन पोजीशन प्रिफर ना करें। वैरायटी ऑफ एक्सरसाइज को इंक्लूड करना है, मोनोटोनिसिटी से फिर उनको बोरियत हो जाएगी, वो कंटाल जाएंगे जल्दी से, तो वैरायटी ऑफ एक्सरसाइज शुड बी देयर। एरोबिक कैपेसिटी स्ट्रेंथनिंग और ये सब हमको देखना है, सब कवर हो जाए। थक जाए बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करके वो पॉइंट तक हमको उनको नहीं लेके जाना है, उसके पहले ही हमको स्टॉप कर देना है। ये आखिरी कैटेगरी है एक्सरसाइजर की, कि अगर एथलेट है और प्रेग्नेंट हो गई है
तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि उनकी फिटनेस लेवल बहुत ही ज्यादा अच्छी होगी, लेकिन जो भी एडवाइसेस है वो उनके लिए भी सेम ही रहेगी कि आपको अपनी बॉडी की सुननी है, क्योंकि फिजियोलॉजिकल चेंजेस तो एथलीट की बॉडी में भी आते हैं, ठीक है। तो वो हो सकता है कि बहुत ज्यादा लेवल की एक्सरसाइज वो टॉलरेट कर सकते हैं, लेकिन सेम वार्निंग्स और कॉन्ट्राइंडिकेशंस उनको भी अप्लाई होते हैं। वो अगर फ्लुएंटली बात कर सकती है विदाउट रुके, बिल्कुल रुके बिना अगर वो पूरा सेंटेंस बोल सकती है, तब तक हम उसको एक्सरसाइज करवा सकते हैं। तो उसके लिए भी मतलब उसका जो फिटनेस लेवल है वो हो सकता है थोड़ा सा हमारे हिसाब से थोड़ा सा अप हो, लेकिन उसके लिए वो उसके बॉडी के हिसाब से वो सही है। तो सेम वहीं पे भी वो ही लागू होगा। हम दूसरे पार्ट में जाते हैं फिटनेस के कि डाइट, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। न्यूट्रिशनल स्टेटस कैसा है प्रेगनेंसी में, और वो फिटनेस पे बहुत ज्यादा असर करता है। तो हमारी ऐसे मेंटालिटी होती है कि जो भी चाहिए, जैसा भी चाहिए, जितना भी चाहिए प्रेगनेंसी में खा सकते हैं। और ये हमारे फैमिली, हमारा सोसाइटी, उसका भी ऐसे रहता है कि अच्छा उसको ये मन हो रहा है तो खाने दो, जितना मन हो रहा है खाने दो। और वैसे भी भूख भी थोड़ी सी ज्यादा रखती है, तो वो कैलोरी काउंट वगैरह सब कुछ तब कुछ भी दिमाग में नहीं आता है, और हम 2 पर्सन का खा लेते हैं प्रेगनेंसी में, और इसके हिसाब से वेट गेन बहुत ज्यादा होता है। तो एक चीज ये बहुत ज्यादा ध्यान में रखनी है कि हमको 2 जने का नहीं खाना है। 2 जन के लिए खाना है, हमारे लिए और हमारे बेबी के लिए, लेकिन वो 2 पर्सन का जितना भी 2 थाली भर के नहीं खाना है, वो इतना ज्यादा जरूरत नहीं रहता है, ठीक है। तो ईटिंग हैबिट्स जो भी होती है उसका इफेक्ट हर चीज पे होता है। कोर्स ऑफ हर प्रेगनेंसी, तो कैसी जाएगी उसकी प्रेगनेंसी, पूरी प्रेगनेंसी, उसको एनीमिया, प्रीक्लेम्शिया बहुत कॉमन है अगर उसका न्यूट्रिशनल लेवल बहुत वीक है तो, ठीक है। तो प्री प्रेगनेंसी में जैसे मैंने बताया था कि हमको ये सब चेक करना है, तो उसका कारण ये है कि जो प्रेगनेंसी पूरी जाएगी, आपका कोर्स ऑफ प्रेगनेंसी कैसा रहेगा वो आपके न्यूट्रिशनल लेवल पे और आपकी ईटिंग हैबिट पे बहुत ज्यादा रहता है। फटीग, मॉर्निंग सिकनेस, लेग क्रैम्प्स, ये भी कुछ अगर कैल्शियम कम है या कुछ और विटामिन कम है तो ये आपको हो सकता है कि आपको कंफर्ट लेवल इतना ज्यादा ना हो। अगर आपको जिंक डेफिशिएंसी है तो आपको प्रीमेच्योर लेबर का रिस्क ज्यादा रहता है। इमोशनल स्टेट भी अच्छा रहेगा अगर आपका डाइट अच्छा है और आपका न्यूट्रिशनल स्टेटस अच्छा है, ठीक है। डाइट में बहुत ज्यादा नहीं कहूंगी, लेकिन ये जो 9 बेसिक प्रिंसिपल्स है, अगर इतना हम इम्प्लीमेंट कर दे हमारे क्लाइंट के डाइट में तो बहुत ज्यादा फर्क रहेगा। एवरी बाइट काउंट्स। सिर्फ 9 महीने मिलते हैं कि हम अपने बेबी को अपने हिसाब से अच्छे लाइफ का स्टार्ट दे सके, ठीक है। तो कुछ भी अगर आप खाते हो, हाथ में बाइट लो तो पहले पूछो कि क्या ये मेरे बेबी के लिए अच्छा है या मेरे बेबी को कुछ न्यूट्रिशन मिलेगा इसमें से। ईच एंड एवरी बाइट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट, क्योंकि प्रेगनेंसी में सिर्फ 300 किलो कैलोरी ही ज्यादा चाहिए हमारे बॉडी को, ज्यादा चाहिए, लेकिन कितना, सिर्फ 300 किलो कैलोरी। तो अगर आप एक समोसा खा लेते हो तो उसमें 1000 किलो कैलोरी रहता है, तो आपके एक्स्ट्रा जो नीड है वो तो उसी में खत्म हो गई। अगर आपका पेट खाली का खाली है तो आपको ये देखना है कि आप जो भी खा रहे हो वो आपके स्टमक में कितना फिलिंग करेगा, उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू कितनी है और उसमें से आपके बेबी को न्यूट्रिशन कितना मिलेगा। तो वो सब आपको बहुत ही ध्यान रख के ही आपके डाइट और फूड को सिलेक्ट करना है, और एवरी बाइट शुड बी काउंटेड। स्वीट नथिंग बट ट्रबल। शुगर जितनी एम्प्टी कैलोरी और कोई नहीं है, उसमें कुछ भी न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ कैलोरीज होती है जो आपका वेट गेन करता है। दूसरा कि जेस्टेशनल डायबिटीज अगर हो तो आपको शुगर से तो डेफिनेटली दूर ही रहना है। शुगर जितना भी ज्यादा लोगे, ब्लड शुगर लेवल उतना ज्यादा बढ़ेगा, वेट गेन इतना ज्यादा होगा, और उसके ऊपर से जो आपकी डाइटरी रिक्वायरमेंट्स है जो न्यूट्रिशन की, वो तो पूरी नहीं ही होती है। तो हो सके तब तक, मतलब
मैं तो हो सके तब तक ये वर्ड देती भी नहीं हूँ कि शुगर को अवॉइड ही करना है। सिंपल कार्बोहाइड्रेट आप जितना हो सके उतना कम लीजिए, हो सके उतना कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट पे ही जाइए। और नेचुरल जो स्वीटनर है उनको ज्यादा यूज कर सकते हो आप, डेट्स ले सकते हो, हनी ले सकते हो, लेकिन शुगर को तो अवॉइड ही करना है। जैगरी इज बेटर देन शुगर, बट still it should be avoided. All calories are not created equal. The body in baby will benefit a lot more from 2000 nutrient rich calories daily than 4000 empty ones. अभी हमने जैसे कि बात किया कि एम्प्टी कैलोरीज क्या है, तो शुगर है, जैसे हम केक्स है, कुकीज है, स्वीट्स, चॉकलेट्स, कोल्ड ड्रिंक्स, जैसे कि कार्बोनेटेड नहीं भी है लेकिन जो पैकेज ड्रिंक्स आते हैं वो सारे शुगर से ओवरलोड होते हैं, तो हमको वो नहीं ही लेना है प्रेगनेंसी में। फैट्स एंड ऑयल्स, मार्गरीन, बटर, सब कुछ अवॉइड करना है आपको। अगर फैट्स और ऑयल्स की नीड है तो वो आप देसी घी या गाय के घी से आप फुलफिल कर सकते हो, लेकिन बटर और मार्गरीन से दूर रहना है। अल्कोहल तो नहीं ही लेना है, उसके बहुत ज्यादा एडवर्स इफेक्ट रहते हैं प्रेगनेंसी में हमारे बेबी पे भी और हमारे खुद के बॉडी पे भी, तो ये सारी चीजें हमको अवॉइड करनी है। उसमें हमको फास्टिंग कभी नहीं करना है प्रेगनेंसी में। अब खुद फास्टिंग करते हो, आपको बेबी को भी फास्टिंग करना पड़ता है। अगर बेबी एक बार बाहर आ गया तो आप उसको भूखा रखना कभी पसंद नहीं करोगे, ठीक है। तो इसी तरह अगर बेबी आप पे डिपेंडेंट है, आपके बॉडी के अंदर है, तो आप उसको भूखा कभी नहीं रखोगे। तो नेवर स्किप अ मील, आपको आपके टाइम से टाइम आपको अपना खाना ले ही लेना है। Efficiency is effective. Fill one's daily nutritional requirement in the most efficient way possible within your caloric need. आपको सारी कैलोरीज काउंट करके उनको इतना भारी मील देना है कि उनको ये फीलिंग हो कि वो मतलब ऐसे स्टार्वेशन की फीलिंग नहीं आनी चाहिए। बैलेंस्ड डाइट आपको उनको प्लान करके देना है। कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉम्प्लेक्स इश्यूज। कार्बोहाइड्रेट्स अनडिफाइंड कॉम्प्लेक्स रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग। अनडिफाइंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जैसे कि होल ग्रेन ब्रेड है, राइस है, ड्राइड बीन्स है, पीस है और फ्रेश फ्रूट्स, तो ये सारी चीजें बहुत ही अच्छी होती है और वो हमको डेली फूड में हमको शामिल करनी होती है। ये हमारे बेबी के लिए भी अच्छा है और हमारे लिए भी अच्छा है। नोशिया और कॉन्स्टिपेशन को भी ये चेक में रखेगा। जैसे हमने प्रॉब्लम्स में हमने देखा था कि ये सारी चीजें बहुत कॉमन है, तो अगर हम ये सारी चीजें जो है, होल ग्रेन्स है या राइस है या फ्रूट्स है या वेजिटेबल्स है, वो अच्छे से लेते हैं, तो ये सारी चीजें भी हमको चेक में रखेगा। Also because they are filling and fiber rich but not fattening, so they will keep the weight gain in check. तो weight gain भी बहुत ज्यादा कंट्रोल होगा। Good foods, remember where they came from. Seasonal fruits को बहुत ज्यादा हमको प्रीफर करना है। फ्रोजन चीजें जो है वो अवॉइड करनी है, क्योंकि सीजनल जो है वो भगवान ने बहुत सोच समझ के बनाए कि ये सीजन में हमको यही चीज की जरूरत होगी और उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू के हिसाब से ही वो उसी सीजन में आता है। तो हो सकता है तब तक सीजनल चीजें जो है उसको ज्यादा प्रीफर करें। कच्चे सब्जी या फ्रूट्स प्रीफर करें ज्यादा से ज्यादा। और जब आप हम उसको कुक करते हैं तो वो मेथड भी बहुत ज्यादा मैटर करती है कि अगर आप उसको बहुत ही हाई फ्लेम पे पकाओगे तो उसके जो मिनरल्स और विटामिन होते हैं वो हो जाते हैं। तो उसको बहुत हल्के से, जो भी उसका कुकिंग मेथड भी आपको देखना है कि आप कैसे उसको पकाते हैं। ये एक बहुत अच्छी चीज है कि हेल्थफुल ईटिंग शुड बी अ फैमिली अफेयर। प्रेग्नेंट लेडी होती है, काफी बार बोलती है कि अपने खुद के लिए इतना सारा पकाने का टाइम ही नहीं रहता है, तो सारे लोगों के लिए पका लो। जो भी प्रेग्नेंट लेडी के लिए बनता है वो सारे फैमिली मेंबर्स के लिए बनेगा, तो वो ऐसे सेपरेटेड फील नहीं करेगी, या सारे वो वननेस बढ़ेगा फैमिली में और सारे लोगों को अच्छी न्यूट्रिशन मिलती है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इजी भी हो जाएगा उनके लिए वो डाइट प्लान फॉलो करना। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज है। बैड हैबिट्स कैन सबोटेज अ गुड डाइट। तो आपको अल्कोहल है या टोबैको है या और अनसेफ ड्रग्स है, वो सब कुछ स्ट्रिक्टली अवॉइड करना है, क्योंकि आप चाहे कितना भी अच्छा डाइट ले लो लेकिन आपकी हैबिट्स जो है वो बाकी हैबिट्स वो अच्छी नहीं है, तो डाइट का कोई भी फायदा आपको नहीं मिलेगा। डाइट मस्ट इंक्लूड ऑल 5 फूड ग्रुप्स बैलेंसडली,
जल्दी जल्दी देखेंगे कार्बोहाइड्रेट्स, ये सारी चीजें जो है ब्रेड, राइस, सीरियल्स, रवा, पास्ता, व्हीट, बाजरी, ज्वार, वो उसमें सबसे मिलता है। और डेली 2 से 3 सर्विंग्स उसके सजेस्टेड रहते हैं बैलेंस डाइट के लिए। डेयरी प्रोडक्ट्स है वो आपको 3 से 4 सर्विंग लेने हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स में आप दही, दूध, चीज हो सके तब तक कम प्रीफर करना, लेकिन पनीर आप ले सकते हो। तो वो 3 से 4, बटर मिल्क है 3 से 4 सर्विंग तक एक दिन में ले सकते हो। प्रोटीन बहुत ही ज्यादा अच्छा है, वो बहुत ज्यादा देर तक आपके स्टमक को फुल रखेगा, तो आपको जो बारी बारी जो हंग्रीनेस की फीलिंग आती है वो नहीं आएगी। 3 से 4 सर्विंग्स एक दिन में आपको लेने ही है। पल्सेस ले सकते हो, नट्स ले सकते हो, बीन्स ले सकते हो। तो ये प्रोटीन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको मिस नहीं करना है हमारे डाइट से। वेजीज एंड फ्रूट्स कम से कम 4 सर्विंग तो लेने ही है। दिन में कोई भी एक फ्रूट तो जाना ही चाहिए। कभी कभी होता है कि फ्रूट्स लेना ही भूल जाते हैं डाइट में, तो ये नहीं होना चाहिए। और वेजीज और फ्रूट्स लेने ही है। दवाई लेने से अच्छा है कि हम वेजीज और फ्रूट्स खाएं। 3 से 4 सर्विंग्स ऑफ फ्रूट्स भी चाहिए, 3 से 4 सर्विंग्स वेजीज के भी चाहिए। ठीक है। फैट्स और ऑयल्स के 1 से 2 सर्विंग्स, मतलब 1 से 2 टेबलस्पून हम बोल सकते हैं कि पूरे दिन में ये एक उसकी नहीं है, ये पूरा दिन की सर्विंग्स की बात हो रही है, पर डे है। तो बहुत ज्यादा ऐसे भर भर के घी या तेल नहीं खाना है। हाँ, जो भी खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने के लिए थोड़ा सा फैट्स और ऑयल्स भी चाहिए, लेकिन वो इतना बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा कम ही रखना है उसको। लिक्विड्स बहुत ज्यादा लेना है, 8+ सर्विंग्स, और हम बोल सकते हैं 10 से 12 ग्लास ऑफ वाटर, या कोई भी जूसेस या मिल्क या कुछ भी, तो वो बहुत ज्यादा लेना है। सुगरी फूड्स कभी कभार ले सकते हैं, कभी कभार 1 पीस ऑफ मिठाई ले लिया या कुछ भी, लेकिन वो हो सके तब तक उसको चेक में ही रखना है। इन शॉर्ट, योर डाइट मस्ट बी बैलेंस्ड। वो कोई भी एक फूड ग्रुप के लिए नहीं जाना चाहिए और कोई एक फूड ग्रुप बिल्कुल ही मिस हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। Now we will move on mental health and fitness. Mental health in pregnancy may affect development of newborn's brain. This is a researched thing, and they have concluded this thing. जो JAMA Pediatrics की जो जर्नल है उसमें उन लोगों ने ये रिसर्च किया है कि वुमेन की मेंटल हेल्थ जो है प्रेगनेंसी में, वो उसके सिम्टम्स और उसकी जो कंडीशन है वो बेबी के वाइट मैटर, ब्रेन के वाइट मैटर के डेवलपमेंट को कोरिलेट करती है। अगर उसकी मदर की मेंटल हेल्थ, मेंटल स्टेटस अच्छा नहीं है, तो बेबी के जो वाइट मैटर है ब्रेन में वो अफेक्ट होते हैं और वो कम डेवलप होते हैं। और जैसे हम जानते हैं कि जो वाइट मैटर है वो ब्रेन में इलेक्ट्रिक वायरिंग का काम करती है, तो वो अगर थोड़ा सा कम रह गया तो कोई भी मम्मा ये नहीं चाहेगी कि उसके बेबी के ब्रेन में डेवलपमेंट कुछ कम रह जाए। ठीक है। तो मेंटल हेल्थ इसीलिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे हमारे एंसेस्टर्स कहते थे कि जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उनको बहुत ज्यादा खुश रखना चाहिए, उसकी सारी इच्छाएं पूरी करनी चाहिए, उनको उनका बहुत ख्याल रखना चाहिए, वो बहुत खुश रहनी चाहिए। तो उसका एक कारण ये भी है कि जैसे मम्मा की जो मेंटल हेल्थ है उसका डायरेक्ट इफेक्ट, मेंटल कंडीशन, उसका डायरेक्ट इफेक्ट बेबी के डेवलपमेंट में भी पड़ता है। ठीक है। बहुत कॉमन है हार्मोनल चेंजेस की वजह से मूड स्विंग्स होना। एक मोमेंट पे आता है कि हम बहुत ही खुश हैं, हमको नाचने का मन होता है, तो दूसरे ही मोमेंट पे हमको रोना आ जाता है। ठीक है। छोटी छोटी बात पे हम इरिटेटेड हो जाते हैं कि बस मुझे अभी कोई बुलाना मत, या कोई भी बात के बिना हम ऐसे गुस्सा हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। कभी कभार ऐसे बढ़ते वजन की वजह से हमारा बॉडी बढ़ रहा है, कपड़े नहीं आ रहे हैं, कहीं बाहर जाना है तो कपड़े नहीं है पहनने को, बहुत फ्रस्ट्रेशन आती है, बहुत कॉमन है। कुछ भी छोटी छोटी बात पे हम बहुत बड़ा रिएक्शन दे देते हैं, सामने वाला से हक्का बक्का रह जाता है कि ये क्या हो गया। लेकिन उनको समझाना चाहिए कि ये सारा हार्मोन्स का खेल है।
कभी कभी डिप्रेशन के बाउट्स भी आते हैं कि कुछ भी अच्छा ना लगे, लिटरली डिप्रेशन में चली जाए लेडी और रोने भी लग जाए, लेकिन ये सारी की सारी चीजें हार्मोन्स की वजह से होती है। चेंजिंग बॉडी शेप कैन डिस्टर्ब सेल्फ इमेज। में बहुत मोटी हो रही हूँ, मैं अभी अट्रैक्टिव नहीं लग रही हूँ, मेरा ऐसा ही होने वाला है, मैं अभी कभी सुंदर नहीं लगूंगी। व्हेन आई हैव कॉन्फ्लिक्टिंग फीलिंग। दूसरा एक बहुत कॉमन है, फियर ऑफ लेबर पेन और फियर ऑफ अननोन इवेंट। क्योंकि मैंने जैसे बोला कि सारी प्रेगनेंसीज अलग होती है, एक लेडी की प्रेगनेंसी दूसरी लेडी की प्रेगनेंसी के साथ हम कंपेयर नहीं कर सकते। एक ही लेडी की दो प्रेगनेंसी भी अलग अलग हो सकती है। काफी बार बोलती है लेडी कि मेरी पहले प्रेगनेंसी में मुझे ऐसा नहीं हो रहा था, अभी दूसरी प्रेगनेंसी में हो रहा है। तो इट इज अननोन थिंग सबके लिए। तो जो वो चीज होती है वो एक स्ट्रेस में लेके जाती है लेडी को। और एक ये चीज बहुत ही कॉमन है, फियर ऑफ लेबर पेन, क्योंकि उसका नाम ही लेबर पेन है और पेन कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं होता है। चाहे कितनी भी उनको पता है कि नहीं लेबर पेन में तो मुझे जाना ही है, लेकिन वो तो अनअवॉइडेबल है, जाना ही है, लेकिन वो मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर होके जाए, हिम्मत से जाए और इन्फॉर्म्ड होके जाए और डर के साथ जाए, दोनों में बहुत ज्यादा फर्क रहता है। तो हमको कैसे मेंटल हेल्थ और फिटनेस पे काम करना है वो अभी हम थोड़ी सी बात करेंगे। एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन कैन सॉल्व मेजॉरिटी ऑफ मेंटल हेल्थ इश्यू। हमको उनको सारी चीजें बतानी है कि आपकी प्रेगनेंसी में इतनी चीजें आपके बॉडी में हो रही है, वो इतनी फिर रिवर्सिबल है और इतनी आपको एक्टिवली विथ एफर्ट्स आपको ये सब सारी चीजें रिवर्स करनी है, ठीक है। और लेबर जो है वो ऐसा है, उसमें ऐसा होता है, आपको ये करना है, आप ये स्ट्रेटेजीज यूज कर सकती है। तो उसका जो डर है, जो पिक्चर है, वो बहुत जो हॉरिबल पिक्चर्स अपने बना के रखा होता है आजू बाजू वाली लेडी ने, किसी मौसी ने, किसी मामी ने, किसी भाभी ने, बहुत ज्यादा खतरनाक एक्सपीरियंस रहता है, वो कम हो जाता है और वो मेंटली प्रिपेयर हो जाती है वो बिग इवेंट के लिए। स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जैसे हमने बोला कि छोटी छोटी बातों पे स्ट्रेस आ जाता है, क्योंकि हमारा जो एफिशिएंसी लेवल है वो चेंज होते जाता है जैसे जैसे प्रेगनेंसी प्रोग्रेस होती है। तो एडीएल में भी स्ट्रेस आ जाता है, कोई जो रूटीन हम काम करते हैं उसमें भी स्ट्रेस आ जाता है। कोई भी ऐसे स्ट्रेस का कोई रीजन नहीं रहता है प्रेगनेंसी में। तो क्या कर सकते हैं स्ट्रेस में? इज अ चॉइस, स्ट्रेस इज अ चॉइस, डीलिंग विथ स्ट्रेस इज ऑल्सो चॉइस। आपको स्ट्रेस लेना है वो आपकी चॉइस है, उसको आपको डील करना है वो भी आपकी चॉइस है, ठीक है। तो फूड से थोड़ा बहुत हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे विटामिन सी, बी ग्रुप, मैग्नीशियम, कैल्शियम और जिंक, ये स्ट्रेस को काउंटर एक्ट करने में हेल्प कर सकते हैं। कुछ ऐसी टेक्निक्स भी है जो स्ट्रेस को मैनेज करने में हेल्प करता है। एक तो है कि बी पॉजिटिव, एवरीथिंग शुड बी टेकन पॉजिटिवली। उसमें हमको अच्छी चीज ढूंढ ही लेनी है जो भी होता है उसमें, ठीक है। लर्न टू से नो। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई अगर वर्किंग लेडी होती है, ऑफिस में ज्यादा वर्कलोड, एक्स्ट्रा वर्कलोड आ जाता है तो ना नहीं बोल सकती है, तो उसमें भी उसको स्ट्रेस ज्यादा आता है। तो इस टाइम पे आपको ना बोलना सीखना होगा, क्योंकि आपका स्ट्रेस आपके लिए तो अच्छा नहीं है, बेबी के लिए भी अच्छा नहीं है। ना भी बोल सकते हैं, आप उसको पोस्टपोन भी कर सकते हैं या उसके लिए थोड़ा सा ज्यादा टाइम भी मांग सकते हैं, लेकिन स्ट्रेस आए ऐसा कोई भी काम सर पे नहीं लेना है। एक ब्रेक ले सकते हैं कुछ भी काम किए बिना, ऐसे ही विदाउट एनी रीजन यू कैन टेक अ लीव। आपको जो भी अच्छा लगता है, म्यूजिक सुनना अच्छा लगता है, कोई बुक्स रीड करनी अच्छी लगती है जो पेंडिंग पड़ी हुई है, वो आप लेके अच्छा सा दिन गुजार सकते हैं। थोड़ा सा रीजनरेट, रीपावर करने के लिए अपने आप को मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज को फॉलो करना है। एक के बाद एक आप अपना प्लान, मैनेजमेंट प्लान बना सकते हैं कि मेरे इतने पेंडिंग काम है, इसमें से इतने अर्जेंट है, इतने अर्जेंट नहीं है, ये प्रायोरिटी पे है, इसको इतना करना है। तो वो स्ट्रेटेजीज सारी अगर आप एक बार कागज पे उतार लोगे तो आपका स्ट्रेस काफी कम हो जाएगा, ठीक है। शेयर योर प्रॉब्लम्स विथ योर स्पाउस, योर सिबलिंग, योर कलीग और योर फ्रेंड्स। किसी के साथ अपना प्रॉब्लम्स शेयर करोगे तो काफी हद तक आपका स्ट्रेस वैसे ही कम हो जाएगा। और हो सकता है कि आपको कुछ सॉल्यूशन भी, वैसे लेडीज लोगों को सॉल्यूशंस नहीं चाहिए होते हैं,
उनको सिर्फ ऐसा चाहिए होता है कि कोई उनको सुने। सॉल्यूशंस तो उनके पास रहते ही है, राइट। सो सिर्फ प्रॉब्लम्स शेयर करने से ही आपकी 80% स्ट्रेस वैसे ही कम हो जाएगी। और एक्सरसाइज एक बहुत अच्छा टूल है आपके स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए। जैसे हमारी बात हुई, एक्सरसाइज से एंडोर्फिन अच्छे से रिलीज होता है, तो मतलब वो एक अच्छे मूड की तरफ लेके जाता है। एक्सरसाइज जो सेशन है उसके साथ वो अपने जैसी लेडीज को मिलती है वो ग्रुप में, तो डिस्कशन रहता है कि अच्छा आपकी कंडीशन ये है, मेरी ये है, हम ऐसे कर सकते हैं, हमारा ऐसा फ्यूचर प्लान है, आपका कैसा है। तो अच्छा आपको बैक पेन हो रहा है, अच्छा मुझे भी हो रहा है, तो ये कॉमन है, मतलब हम उनको उसके लिए कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, उसके लिए स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं। तो जो एक्सरसाइजेस है उसके साथ ही जो सोशल कम्युनिकेशन है वो भी एक बहुत अच्छा सा रोल प्ले करता है मेंटल फिटनेस के लिए। एक दूसरा चीज है योगा और मेडिटेशन मेंटल वेलनेस के लिए। सिर्फ हम बोलते हैं कि प्राणायाम, लेकिन वो बहुत 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 इफेक्टिव है। प्राणायाम हम सिर्फ ऐसे बोलते हैं कि ये सिर्फ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस है, हमको डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है, हमको अनुलोम विलोम करना है, हमको भ्रामरी करना है, हमको सुतली करना है, ठीक है, ये सारे प्राणायाम तो हमको करने ही है। लेकिन अगर हम उसको डीप में जानेंगे, प्राणायाम क्या है, जैसे हम साइंटिफिकली देखें तो प्राण मतलब ऑक्सीजन, हम सारे लोग ऑक्सीजन लेते हैं नाक से जो लंग्स में जाते हैं, फिर वहां से ऑक्सीजन सप्लाई होता है ब्लड में, CO2 वापस में आता है और वो एक्सलेशन के साथ बाहर निकल जाता है। लेकिन हमारे योग उपनिषद है, योग दर्शन है, ये सारी चीजें कुछ अलग कहती है कि प्राण जो है वो एक तत्व है, ठीक है, और सिर्फ ऑक्सीजन नहीं है, वो प्राण जो तत्व है बहुत ही सूक्ष्म है, जो कोई भी साइंटिफिक टूल उसको पकड़ नहीं पाती है, ठीक है। तो जो प्राण तत्व है हमारी हर ब्रीथ के साथ, जो यूनिवर्स में जो प्राण तत्व है वो हमारी हर एक ब्रीथ के साथ अंदर जाता है और वो हमारी बॉडी में अलग अलग जगह पे अलग अलग काम करता है। आयुर्वेद के हिसाब से योग उपनिषद के हिसाब से 24 जात के प्राण होते हैं, 24 टाइप्स ऑफ प्राण, वो अलग अलग सिस्टम में अलग अलग काम करते हैं। तो जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो काम करता है वो है अपान प्राण, ठीक है। तो अगर प्राणायाम में हम स्पेसिफिकली वो एरिया में काम करते हैं तो इट इज एन एक्सीलेंट एक्सपीरियंस फॉर अ लेडी, एंड उसके हिसाब से वो उसकी प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा और उसके लेबर और डिलीवरी में भी उसको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा अगर उसका अपान प्राण स्ट्रांग है। तो मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन खुद से जुड़ने की क्रिया है। जो सारा स्ट्रेस, जो सारा एंजाइटी है, जो सारा मेंटल इश्यूज है, वो आता है बाहर की दुनिया से। उसने मुझसे ये कहा, उसने मुझसे ये एक्सपेक्टेशन की, मैंने उससे ये एक्सपेक्टेशन की लेकिन उसने फुलफिल नहीं की, तो उसकी वजह से जो सारा स्ट्रेस वो आता है वो मेडिटेशन से जाता है। मेडिटेशन है खुद से जुड़ने की क्रिया, खुद के अंदर उतरने की क्रिया। जो खुद के अंदर जीव आत्मा है उसके साथ हमको जुड़ना है मेडिटेशन में। मेडिटेशन ऐसा नहीं है कि ऐसे आंख बंद करके चुपचाप साइलेंट कॉर्नर में बैठ गए और मेडिटेशन कर लिया। हाँ, आपको उससे फिजिकल रिलैक्सेशन बहुत ज्यादा मिलेगा, लेकिन अगर आप एक स्टेप अहेड जाते हो तो डेफिनेटली आपको जो आप उसका मेंटल बेनिफिट्स मिलता है वो बहुत बहुत मतलब बहुत ही ज्यादा होता है, और वो उसका कोई मतलब इनवैल्यूएबल, उसका मतलब वो प्राइसलेस, उसका कुछ मतलब वो नहीं होता है। तो मेडिटेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो गाइडेड मेडिटेशन हो तो आप उसको बहुत ज्यादा अच्छे से यूज कर सकते हो। तो योग को सिर्फ ऐसे ही ना ले, उनको ठीक से डीप से जाने। योग सिर्फ योग आसन नहीं है। आसन जो होते हैं वो सिर्फ बॉडी पे काम कर, फिजिकल बॉडी पे काम करते हैं, ठीक है। मेजोरिटी ऑफ द टाइम अगर आप उसको जाने बिना करते हो, तो अगर आप उसको जान के करते हो, अगर आप उसको मन से करते हो, मन को जोड़ के करते हो, तो उसका बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है। योग सिर्फ आसन नहीं है, जैसे मैंने बोला उसके 8 अंग है अष्टांग योग के, यम, नियम, आसन,
प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ठीक है, तो ध्यान समाधि तक तो जाना बहुत मतलब ऐसे मुश्किल तो नहीं है, लेकिन किसी का वो एम नहीं होता है समाधि तक जाने का। लेकिन प्रेगनेंसी में अगर हम धारणा और ध्यान तक भी पहुंच जाए तो एक बहुत ही अलग लेवल पे पहुंच जाएंगे, और हमारे साथ जो हमारे अंदर एक जीव है, हमारे अंदर जो एक सर्जन हुआ है, परमात्मा ने जो किया है, वो भी एक अलग लेवल पे ही होके बाहर आएगा। तो ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ मदर, कि सिर्फ उसको फिजिकल फिटनेस नहीं देना है हमको, बेबी को, उसको मेंटल फिटनेस भी देना है। और उसके साथ ये भी चीज ध्यान रखनी है कि सिर्फ प्रेगनेंसी में ही, मतलब डिलीवरी हो गई, बेबी हो गया, उसके बाद हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो खत्म नहीं होती है। तब तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू होती है एक अच्छा इंसान को बनाने की, जो हमारी सोसाइटी के लिए कुछ, हमारी कंट्री के लिए, हमारे वर्ल्ड के लिए कुछ कर सके। तो ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है, और उसके लिए एज अ मदर, एज अ क्रिएटर, हमको खुद को एक लेवल पे लाना होगा जो हम मदर ही कर सकते हैं। ठीक है, so this was all about physical and mental fitness. Questions are welcomed. Yes, wonderful session, ma'am. Thank you. Physical fitness, exercise, diet, fitness, and the last part was an ice on a cake, that mental fitness along with the, in the society, how are you going to make a stand and make a mark, as an Definitely. responsible mother. It's the mother's responsibility actually. Definitely. So वो कहते हैं ना yes. कि एक मदर एक यूनिवर्सिटी के बराबर होती है, तो वो मदर की बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है हर चीज में। Yes, definitely. So wonderful session that I would say, and definitely the viewers, the participant, and the Facebook Live, those who were there with me for the entire session must have got a lot of things. And the major thing that they must have got to know that the absolute contraindications, that when exactly we don't need to do it. Yes. Right, because nowadays the people they think that yes, we need to be a physical fit, but they don't know when not when to do stop and when not to do. So, yes, definitely, that is the main thing. One must know that when to stop himself or herself. And if we talk about pregnancy, then definitely when to stop herself, that one should know. Right? So और वो क्लास से पहले उनको स्ट्रांगली उनको काउंसिल करना होता है कि ये कब नहीं करना है, आपको कब स्टॉप करना है। और एक चीज ये भी है कि कोई भी आप फिजिकल वर्कआउट शुरू करें उससे पहले आपको उनको उनके कंसल्टेंट से वो लिखवाना होता है कि ये फिजिकली फिट है उनको वर्कआउट करवाने के लिए। और दूसरा कि आपको भी एक कंसेंट फॉर्म लेके रखना है पेशेंट के साइन के साथ कि आपने उनको सब कुछ बता दिया है और वो एग्री है आपके साथ कि ये कोई ऐसा हार्मफुल या ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अगर कुछ होता है तो इसमें मतलब वो लीगली वो सब बहुत ज्यादा चीजें बहुत जरूरी होती है। Okay, and I would like to let the viewers know that the Dr. Pallavi ma'am has wonderful 2 daughters, and she has taken care of both the daughters in such a way that absolutely a strict mother. Her father is cool, but mother is sweet, and they are managing both the kids very nicely. The one daughter is a painter, and the another one is about to get something new. I don't know, but she'll turn out to something. Yes, ma'am, I would like to request in the chat box, you must be seeing few feedbacks, and there might be few questions also. So from there itself you can answer, then it would be quite good for all of us. So if you can see the chat box, can you see?
Yes. Okay. Why prolonged supine position during exercise or sleep is avoided? Yes, because after second trimester, uterus is not a pelvic organ more. It comes to abdomen area. Okay. जैसे ही फिटस ग्रो होता है वो धीरे धीरे पेट की जो एरिया है उसमें कवर होता है. तो जैसे हम सुपाइन पोजीशन में आते हैं तो हमारा जो वीना केवा होता है, इंफीरियर वीना केवा, उसके डायरेक्टली ऊपर ही यूट्रस रेस्ट करता है. ठीक है. तो हम सुपाइन पोजीशन में रहते हैं तो बेबी का वेट पूरा वो हमारे वीना केवा पे जाएगा जो सर्कुलेशन को इंटरफेयर करेगा. तो वैसे ही हमारा सर्कुलेशन कॉम्प्रोमाइज्ड तो नहीं बोल सकते लेकिन ऑल्टर्ड होता है प्रेगनेंसी में. तो सुपाइन में जो कार्डियक आउटपुट है या सर्कुलेशन है वो सारा इंटरफेयर होगा अगर हम सुपाइन पोजीशन में रहेंगे और इंफीरियर वीना केवा अगर खुला नहीं रहेगा तो हो सकता है तब तक हमको सुपाइन पोजीशन अवॉइड करना है. और अगर हमको और कोई पोजीशन नहीं ऐसे ठीक लगती है सोने में तो राइट हिप के नीचे हमको थोड़ा सा टॉवेल या थोड़ा सा पिलो जैसा कुछ रख के थोड़ा सा स्लांट सो सकते हैं. लेकिन प्योर सुपाइन पोजीशन इज नॉट फेवरेबल. Okay. What physical exercises should avoid during pregnancy? Okay, physical exercises जो हमको प्रेगनेंसी में नहीं करनी है वो तो एक तो ये है कि हाई इम्पैक्ट एक्सरसाइजेस हमको नहीं करनी है जिसमें ज्यादा इम्पैक्ट हमारे जॉइंट्स पे आता है, हमारे पेल्विक फ्लोर पे आता है या हमारी सारी सिस्टम को ऐसे मतलब इंटरफियर करता है, वो नहीं करना है. जर्की मूवमेंट्स नहीं करनी है, जैसे कि मैंने बोला कि लिगामेंटस फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से हमारे जॉइंट्स स्टेबल नहीं होते हैं. बैलिस्टिक मूवमेंट्स नहीं करनी है. तो ये सारी सडन डायरेक्शन चेंज हो ऐसी मूवमेंट्स नहीं करनी है. तो ये बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा हेवी वेट लिफ्ट नहीं करना है. ये सारी चीजें हैं जो हमको प्रेगनेंसी के दौरान नहीं करनी चाहिए. और बाकी जो हमको हमारी जो इंटेंसिटी लेवल है वो जैसे हमने डिस्कस किया कि ऐसे टॉक टेस्ट या तो बॉक्स स्केल के हिसाब से उसको चेक में रखना है. एनी मोर क्वेश्चन? There is a one more. I can't see that. If you can convey to me. Samira ma'am, Yes. please read the question for ma'am. Ma'am, there is one question that if lady with epilepsy, if lady has a epilepsy, then what are the major absolute precaution will be prescribed during the physical activity, which can cause also during labor pain? What is the role? ओके, अगर उनको एक्टिव एपिलेप्सी है, मतलब उनको रिसेंट ही कुछ मतलब ऐसे अटैक्स आए हैं एपिलेप्सी के, तो उनको हम पहले से ही काउंसिल कर सकते हैं कि आप अगर आपको कुछ ऐसा लगे कि आपको जो प्री सिम्टम्स आते हैं ऐसा कुछ लगे तो आप डायरेक्टली हमको बोल सकते हैं. या लेबर में भी उनको अगर ऐसा होगा तो वो अपने गायनेक के साथ कंसल्ट कर सकते हैं. तो नॉर्मल लेबर अगर उनके लिए पॉसिबल है तो वैसा बहुत ज्यादा ऐसा कुछ दिक्कत नहीं आता है अगर वो अपने ब्रीथिंग को कंट्रोल कर सके और अपने ब्रीथिंग पे फोकस करके वो जो पेन है उसको फेस कर सके. तो इतना ज्यादा बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आता है एपिलेप्सी में. And there is one more question. Yes. What are the reasons of miscarriage at third trimester? Is it because of mother health or other factors? दोनों हो सकते हैं. थर्ड ट्राइमेस्टर में मिसकैरेज नहीं बोल सकते उसको. थर्ड ट्राइमेस्टर में उसको हम प्रीटर्म लेबर ही बोलते हैं. ठीक है. और उसके बहुत काफी रीजन हो सकते हैं और वो मेडिकल कंडीशंस पे ज्यादा जाएंगे. ठीक है. तो वो गायनेकोलॉजिस्ट के साथ अगर वो डिस्कस कर सकते हैं तो वो बहुत ज्यादा बेटर रहेगा. वो प्रीटर्म लेबर ही बोल सकते हैं, उसको मिसकैरेज नहीं बोल सकते, क्योंकि 6th या 7th मंथ के बाद तो ऐसे लाइव बेबी भी आ सकता है. किसी को 7वें महीने में अगर लेबर शुरू हो गया, प्रीमेच्योर बेबी आ गया तो वो सर्वाइव भी हो सकता है. ठीक है. तो अगर वो बेबी अगर नहीं बचा है तो वो डिफरेंट थिंग है, लेकिन वो लेबर ही है, वो अबॉर्शन नहीं है. Sir,
Any questions, all the viewers and participants? I guess no. That's they are quite happy with the one more question, ma'am. Yes. Yes. What are the key exercise for common symptoms like carpal tunnel syndrome during pregnancy? कार्पल टनल सिंड्रोम के लिए एक्सरसाइजेस जो है वो यही है कि कार्पल टनल का रीजन क्या है. कार्पल टनल यही है जो फ्लूइड रिटेंशन होता है, उसकी वजह से मेजोरिटी ऑफ द टाइम नाइट में ज्यादा होता है कार्पल टनल सिंड्रोम का वो जो है वो. तो दिन में हमको एक्टिव एक्सरसाइजेस जो कार्पल टनल के लिए हम दिखाते हैं फिजियोथेरेपी में वो दिखानी है. पानी बहुत ज्यादा पीने को कहना है और रात में डिपेंडेंट पोजीशन में हाथ नहीं रखना है. उनको पोजीशनिंग भी हमको दिखानी होती है कार्पल टनल के लिए. तो ये जो चीजें हैं वो हम उसके लिए कर सकते हैं. So I guess no more questions, and the session was quite fruitful, ma'am. Thank you so much. Thank you very much, madam, spending Thank you, valuable sir. time for our students, our viewers, all attendees. Thanks a lot. Thank you very much, sir. Thanks a lot for the platform, and I hope के सबको जो एक्सपेक्टेशन के साथ उन्होंने मुझे 1 घंटा 1.5 घंटा दिया है वो मैंने फुलफिल किया हो. So hopefully, thank you. Thank you. Okay, ma'am. Thank you. Thanks a lot. Bye. Thank you. Yeah. Thanks all the viewers for joining us. Bye.